Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the business and economic news of the day. And today we will also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on any economic or business related news. You can call us with your queries on 2331 4444, 2342121050 and 2331-0464. For listeners calling from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Sparsh Saxena. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो गया शाम 6:30 का और आप सभी श्रोताओं का हम आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में स्वागत करते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आज सोमवार है, आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। आज चर्चा के लिए और आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक चंद्रशेखर जी। मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Sparsh. Domestic benchmark indices end in negative territory amid mixed global cues. Sensex plunges over 1,000 points while Nifty settles at 25,810. Government to bring in the Business Reforms Action Plan BRAP 2024 to further strengthen Make in India initiative. And global crude oil prices fall today as strong supply outlook outweighs fear of escalating conflict in the Middle East. घरेलू बेंचमार्क सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 84,299 और निफ्टी 25,810 पर बंद हुआ। सरकार मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करने के लिए व्यापक कार्य सुधार योजना BRAP 2024 लागू करेगी। और भू राजनीतिक तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बाजार के ऊपर। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मिले जुले वैश्विक संकेतों और मुनाफा वसूली के कारण नुकसान के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में दोनों ही सूचकांक 1.4% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,272 अंक टूटकर 84,299 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 368 अंक के घाटे के साथ 25,810 पर रहा। एनएसई की 160 कंपनियों ने अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ और 72 ने निचले स्तर पर रहीं। And we already have our first caller, Keshav, who's calling us from Delhi. But before we take your call, Keshav, let me give you a detailed let me tell you in detail what happened in the market today. Domestic benchmark indices Sensex and Nifty ended in negative territory today amid mixed global cues and profit booking in the frontline stocks. The Sensex tumbled 1,272 points and closed at 84,299, while the Nifty plunged 368 points to settle at 25,810. Both the indices fell over 1.4% each. In the NSE, 160 companies hit their 52-week high, while 72 hit their 52-week low. In the broader market at the BSE, the mid-cap index ended 0.28% lower, while the small cap closed 0.07% higher. In the Sensex index, 25 out of 30 companies ended in negative territory. The top laggards today were Reliance and Axis Bank that tanked more than 3% each. Mahindra & Mahindra fell 2.7% and ICICI Bank declined more than 2.5%. Conversely, the top gainers were JSW Steel, which surged nearly 3%. NTPC as well as Tata Steel added more than 1%, and Asian Paints increased more than 0.5%.
In sectoral indices at the BSE, 18 out of 20 sectors logged losses. The top laggards today were auto, that plunged nearly 2%, while BankX and Realty shed over 1.8%, and financial services lost 1.4%. Meanwhile, the only two gainers today were metal, which rose more than 1%, and commodities, which gained more than 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative, as out of 4,193 companies, shares of 1,819 advanced, shares of 2,223 companies declined, while shares of 151 companies remained unchanged. And now let us take the call from Keshav, who's calling us from Delhi. Keshav, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. अपना सवाल पूछें. नमस्कार जी नमस्कार. सवाल पूछिए अपना. मार्केट मंत्रा की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद. जो आपका एक बहुत अच्छा एड आर्टिकल चल रहा है, दानवीर क्यों कह रहे हो मेरे को, ये मैंने दिल्ली से लेके अंडमान तक सुना. आपका एड बहुत अच्छा है. आपका जो समाज में आप काफी अच्छे तक अपना जो अपना जो लोगों को भ्रम ना रहे शेयर मार्केट का, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं जी. मेरा सवाल ये है कि जो मार्केट में गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड कौन सी ऐसी जगह से खरीदें जहां विश्वास 100% मिले, और क्या हमें पूरा उसका मार्का देंगे? अगर मार्का ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि अगर हमारे पास कुछ अमाउंट है तो हम किस जगह ऐसी जगह लगाएं जो 1 साल के पीरियड के अंदर हमारे को बेनिफिट दे, जैसे हम अभी फिलहाल ब्रांच में ही लगाते हैं. जी. तो चंद्रशेखर जी, इनके दो सवाल. एक तो सोना खरीदने के बारे में बात कर रहे हैं कि कहां से खरीदा जा सकता है, विश्वास जहां ज्यादा बेटर हो, और अगर 1 साल का पीरियड है इन्वेस्टमेंट के लिए तो कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. देखिए, जो सोना खरीदने हैं ये उसके दो तरीके हैं. या तो आप फिजिकल गोल्ड खरीदें, और दूसरा ये तरीका है कि आप जो मार्केट से जो एक ETF है जिसको कहते हैं गोल्ड बीज, तो आप गोल्ड बीज जो है वो उसका प्राइस और गोल्ड का प्राइस लिंक्ड रहता है. तो जैसे आपके पास, जैसे मान लीजिए किसी के पास छोटा, क्योंकि गोल्ड तो बहुत महंगा हो गया है, अब 70,000 पर 10 ग्राम के हिसाब से गोल्ड चल रहा है. जैसे मान लीजिए आप फिजिकल गोल्ड नहीं लेना चाहते, आपको कुछ क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं, तो आप गोल्ड बीज खरीद सकते हैं. और गोल्ड बीज का प्राइस जो है वो चूंकि गोल्ड के प्राइस से लिंक्ड है और उसकी जो है लिक्विडिटी ज्यादा है, आप जब चाहें उसको कैश कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके भी खरीद सकते हैं, इकट्ठा भी खरीद सकते हैं. तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप जो है अपने जो भी आपका जो जिस ब्रोकर से आपका अकाउंट है, आप उसमें सर्च करें गोल्ड बेस पे, और वहां पे जाकर के खरीदें. तो वो सिक्योर्ड भी है और प्लस उसमें लिक्विडिटी भी ज्यादा रहेगी. और ये इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे थे कि 1 साल के अगर उनको अच्छा रिटर्न चाहिए तो क्या एवेन्यूज हो सकते हैं निवेश के लिए. निवेश के लिए बताया, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जब आते हैं तब आप ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि गोल्ड बीज है वो तो मार्केट में है, वो ETF है, वो हमेशा खुला रहता है. आप उसको 1 साल 6 महीने या 1 साल से ज्यादा जब जितना पीरियड के लिए आप रखना चाहें रख सकते हैं. जब आपको लगे कि नहीं अब मुझे पैसे की जरूरत है तो आप बेच सकते हैं, और आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं. Listeners, as you know, you're listening to your favorite business program on Akashvani Market Mantra, and today we are taking calls from you on any queries that you have related to the share markets, to investment, to business. The numbers that you can call us on are 23314444, 23421050, and 23310464. These are Delhi numbers, so do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. जी चंद्रशेखर जी, पिछले 2 महीने में ये पहली बार जो है ये गिरावट सबसे अधिक देखी गई है. इसके पीछे क्या प्रमुख कारण आप देख पा रहे हैं? एक जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि जो एक जापान में जो हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से जो है पूरा मार्केट जो है, हमारा मार्केट भी गिरा है और कोरियन मार्केट भी गिरा है, और प्लस जो UK का जो मार्केट है या जो और बाकी यूरोपियन मार्केट्स हैं उनमें भी गिरावट देखने को मिल रही है. तो एक्चुअली जापान में हुआ ऐसा है कि जापान में वहां के प्राइम मिनिस्टर बदलने वाले हैं. तो अब जो वहां के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे वो होंगे मिस्टर इशिबा. तो चूंकि उन्होंने अपने जिस तरीके से पहले वक्तव्य दिए हैं, तो उससे लग रहा है कि वो एक हॉकिश प्राइम मिनिस्टर हैं, इन द सेंस कि वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जापान में बढ़े. तो वो जापान में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट जो है जापान के रियल एस्टेट कंपनीज में हुआ है, जापान की ऑटो
कंपनीज में हुआ है, तो उसी का जो हमें इम्पैक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से प्रॉब्ली एक ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से आज हमें स्टॉक मार्केट में जो है वो एक गिरावट देखने को मिली। एक दूसरा भी कारण ये है कि क्योंकि कल अगर फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने करीब 1200 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से विड्रॉ किए हैं। तो ये कंबाइंड इम्पैक्ट है स्पेशली ग्लोबल मार्केट में क्योंकि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री में या डोमेस्टिक इकोनॉमी में कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि जो एक नेगेटिव सेंटीमेंट जो है जिससे कि नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में जाए। जी, और हमारे साथ दिल्ली से योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछें अपना। जी नमस्कार आप सभी को। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जो FII ने सेलिंग करी है और चाइना की तरफ रुख करा है, इसका क्या कारण है, कब तक जारी रहेगा? योगेश जी, आप अपना सवाल फिर से रिपीट करेंगे प्लीज? जी मेरा सवाल ये है कि FII ने जो सेलिंग करी है और चाइना की मार्केट की तरफ ज्यादा रुख करा है, इसका क्या कारण हो सकता है और ये कब तक जारी रहेगा? जी, ये आपका देखिए FIIs का तो अपना एक वो होता है क्योंकि अब वो क्यों सेल करते हैं, उनकी अपनी एक वो होती है, उनकी अपने जो उनको एक मिनिमम प्रॉफिट मिल गया तो इसलिए वो सेलिंग करते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। जहां तक ये चाइनीज मार्केट की बात है तो चाइना में एक्चुअली चाइना की गवर्नमेंट में चाइना में ये एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट जो है वहां की फिस्कल स्टिमुलस देगी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, और वो स्टिमुलस किसी भी तरह का हो सकता है। तो उस एक्सपेक्टेशन पे जो है चाइनीज मार्केट और हैंग सेंग जो है ये दोनों मार्केट जो है चढ़ी हैं। अच्छा, उसका इम्पैक्ट अब आप इंडिया पे क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए जब चाइनीज मार्केट बढ़ती है तो हमारे जो डायरेक्टली जिस सेक्टर को इम्पैक्ट करती है वो होता है मेटल सेक्टर, क्योंकि चाइना ये एक्सपेक्ट करता है कि चाइना में अगर डिमांड बढ़ेगी तो हमारे मेटल्स की भी वहां पे डिमांड बढ़ेगी, तो मेटल सेक्टर जो है वो इम्पैक्ट होता है। इसीलिए मेटल सेक्टर अगर आप देखें तो आज थोड़ा बढ़ा है क्योंकि ये चाइना से लिंक्ड है एक तरीके से। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क यू मिस्टर चंद्रशेखर, दैट we see that there's been a broadband, most of the sectors have ended in red today, but metal sector is one sector that, performed well. And like you just said, that is also because of the stimulus that is being announced by the Chinese government. And that is one of the other sector that has done well is the commodities sector. What are the reasons for that? कमोडिटी सेक्टर में एक्चुअली कमोडिटी जो है वो कमोडिटी तो थोड़ा ग्लोबल मार्केट से भी लिंक्ड रहता है, मे बी पार्टली बिकॉज अगर देखिए ग्लोबल इन केस देयर इज क्राइसिस इन द ग्लोबल मार्केट, सो देयर आर एक्सपेक्टेशन दैट द कमोडिटी प्राइसेस विल गो अप, सो दैट pushes up the commodity. We'll continue with this discussion, but let's take the next call which is coming in from Mumbai, and that is from Gopal. Gopal, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछें। नमस्कार जी, मार्केट मंत्र टीम को। मेरा एक ही सवाल है, लेकिन सवाल थोड़ा बड़ा है और मेरे को रिक्वेस्ट है कि ये सवाल सुन लीजिए और मेरे को इसके जवाब की सख्त जरूरत है जी। मेरा एक सवाल ये है कि एक कंपनी 2015 में वाइंड अप हो गई थी मार्केट से, उसका नाम है फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो वो कंपनी वाइंड अप होने के बाद उसमें फिक्स डिपॉजिट पड़ा हुआ था, तो लिक्विडेटेड कोर्ट में केस चल रहा था, तो इसका 2023 जनवरी में निकाल आया कि आप इंटरेस्ट के साथ में सबको रिफंड करिए पैसे। तो ये मामला अधीन है कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के हाथ में है, अपना ये कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर के हाथ में है। तो मैं बॉम्बे ऑफिस में जब भी चक्कर लगाता हूँ, पेपर सारे दिए हुए हैं रिफंड के मेरे, जब भी मैं चक्कर लगाता हूँ वो एक ही बात बोलते हैं, अभी उसको 20 महीना हो गया रिफंड अभी तक नहीं हो रहा है। जब भी मैं चक्कर लगाता हूँ एक ही बात बोलते हैं कि अभी वर्कर का रिफंड चल रहा है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। जब भी जाता हूँ उसके कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री अफेयर में जो बैठे हुए आदमी लोग ऐसे इनको परवाह ही नहीं है कि भाई धक्का खा रहे हैं भाई आके, बस ऐसे उसको पटाके भेज देते हैं। तो मैं करूँ तो क्या करूँ, 20 महीना हो गया, रिफंड का ऑर्डर आ गया है कोर्ट का। ये देखिए जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उसमें जो है जिनको पैसा मिलेगा उसका एक वाटरफॉल मैकेनिज्म टाइप का होता है। तो उसमें सबसे पहले वर्कर्स के ड्यूज क्लियर होते हैं, उसके बाद फिर जो जैसे आपने बोला है कि आपका उसमें आपने उसका डेट ले रखा है कंपनी में, आपका डेट है, तो वो डेट आपका जब आएगा आपके डेट की, अब वो पता नहीं, मुझे तो ऐसे आइडिया नहीं लगेगा कि जो कंपनी वाइंड अप हुई है उसके पास कितने एसेट्स हैं
और जो डेटर्स हैं उसमें भी डेटर्स में भी कई कैटेगरीज होती हैं। एक सिक्योर डेटर्स होता है, एक अनसिक्योर डेटर्स होता है। तो उसमें अब ये चूंकि पूरी डिटेल होगी तभी पता लग पाएगा कि आपका जो है उसमें नंबर, पहली बात कि कंपनी के एसेट कितने हैं वाइंड अप हो गई है। तो एसेट के बाद जो पहला चार्ज होगा वो होगा, पहले तो होता था कि गवर्नमेंट टैक्सेस का, लेकिन चूंकि लॉ में चेंज किए गए हैं तो इसमें वर्कर्स का जो है, वर्कर्स के ड्यूज जो हैं वो पहले क्लियर किए जाएंगे, उसके बाद डेटर्स का नंबर आता है। तो ये इसी वजह से शायद आपका डिले हो रहा है। अब ये तो मुझे पता नहीं है, शायद आपको भी पता नहीं होगा कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और उसका लिक्विडेट होने के बाद उसके कितने किस को कितना पैसा मिल रहा है। जी। और अगर आज के बाजार पर एक बार फिर से नजर डालें तो ऑटो सेक्टर पे खासतौर पे मैं पूछना चाहूंगा आपसे। ऑटो सेक्टर का हमने पिछले कुछ दिनों में देखा रनअप काफी अच्छा खासा था, लेकिन आज तकरीबन 2% से उसमें गिरावट देखी गई है। क्या आप मानते हैं कि ये एक नॉर्मल मुनाफा वसूली है, प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर और किसी कारण की वजह से ये गिरावट देखी जा रही है? देखिए, आज जो ये ऑटो सेक्टर में आज तो पूरा मार्केट ही गिरा है, तो इसमें आप एक को सिंगल आउट नहीं कर सकते कि किसी ऑटो सेक्टर पे कोई एक पर्टिकुलर कोई रीजन हो। लेकिन चूंकि पूरा मार्केट गिरा है तो 1000 पॉइंट से ज्यादा बीएसई सेंसेक्स गिरा है, तो ऑटो सेक्टर भी उसी फ्लो में है। और जैसा कि अगर ऑटो सेक्टर की डिमांड है, थोड़ी सी वीकनेस है डिमांड में, बट इतनी नहीं है कि 2% गिर जाए। तो जी बिल्कुल। और हमारे साथ आकाश जुड़ चुके हैं दिल्ली से। आकाश जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। हेलो जी। हेलो सर, नमस्ते सर, मैं आकाश दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी सर, हम जैसे बैंक में जाते हैं लोन अप्रूवल के लिए, तो वो लोन मना करते हैं देने से, तो उसमें सर हमें क्या करना चाहिए? जी चंद्रशेखर जी, देखिए, अब बैंक में अब ये तो डिपेंड करेगा कि आप किस उसमें लोन ले रहे हैं, किस वजह से लोन ले रहे हैं। और बैंक यूजुअली तो मना नहीं करता है, हो सकता है वो आपसे कुछ सिक्योरिटी मांग रहा हो, या ये भी रीजन भी डिपेंड करता है आप कितना लोन ले रहे हैं। जैसे लोन के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। जिस हिसाब से जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एसेट है, आप उसको मॉर्टगेज करके लोन ले रहे हैं, या आप एक बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, या आप छोटे कारोबारी हैं इसके लिए लोन ले रहे हैं, तो लोन तो बैंक यूजुअली मना नहीं करना चाहिए अनलेस कोई उसका कारण हो। आपने जैसे कहा चंद्रशेखर जी की जो बैंक में जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो हर एक बैंक के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि ये जो कुछ नियम ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से शायद इनको मना किया गया हो। तो ये तो एक मतलब बहुत ब्रॉड बेस्ड सवाल है कि क्यों मना कर रहा है बैंक। इसके कई कारण हो सकते हैं। सिविल भी देखा जाता है, बहुत सारे कारण। बहुत सारे। We were talking about the markets, Chandrasekhar ji. So I just want to know from you that, of course, today, there's been because there was a global cues that the markets crashed. But do you think that the Indian markets are in a consolidation phase right now? Indian markets have been rising and consolidating. We are on an uptrend. Indian markets are currently on an uptrend. If we look at the say for 3-4 months, the markets are moving, and markets are definitely consolidating, and it depends upon the individual shares also. Some shares are moving, moving at a breakneck speed, and the market is in an uptrend, I would say. And now that we are right on the verge of, on the doorstep of the festive season that is beginning, so which are the sectors which are likely to do well in the run, in the next few couple of months, would you say? Well, FMCG sector is likely to do well, and the other is the real estate sector, because mostly people buy property purchases take place in this month, and even auto, would you say? Yeah, auto people also purchase automobiles, and because the auspicious months and auspicious days are coming, so these are the sectors which are likely to do well. और अब फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मेरा एक बैंक के लिए सवाल है कि जैसे मेरे पास अभी मैं सीनियर सिटीजन हो गया, और अब मेरा जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा मैं अब सीनियर सिटीजन के इसमें लगा पाऊँ, ऐसी कोई स्कीम बताइए कि जहाँ मुझे सरल तरीके से मेरे पैसे इन्वेस्ट होते रहे। और दूसरा, बैंक में अगर हम आरटीआई नहीं देते तो बैंक वाले कहते हैं आरटीआई देंगे तभी हमको हमें लोन दे सकते हैं, और जो हमारा मकान है वो लगभग
में 4 हिस्सों में है, तो कहते हैं पहले एक के नाम कीजिए तब मकान के ऊपर आपको लोन मिल पाएगा। जी ठीक है, आप सीनियर सिटीजन हैं तो एक्चुअली बैंक में तो बहुत अच्छी स्कीम्स आ रही हैं आजकल। एक शायद ये इसकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है 444 डेज की जो है स्कीम है, उसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं और उसमें शायद इंटरेस्ट जो भी मिलेगा उस पर सीनियर सिटीजन को 0.5% ज्यादा मिलता है। इसी तरीके से बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है, उसमें 400 डेज की स्कीम है। हाँ, तो ज्यादातर बैंक जो है अपने सीनियर सिटीजन्स को जो इंटरेस्ट है वो 0.5% ज्यादा देते हैं। तो आप ये सब स्कीम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आपका जो दूसरा प्रश्न था कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेने के लिए, तो देखिए उसमें प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर आप लोन लेंगे तो आपको प्रॉपर्टी का टाइटल तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बैंक तभी आपको उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके लोन देगा अगर उसका टाइटल क्लियर होगा। तो ये तो बेहद जरूरी है। जी, और अब नजर डाल लेते हैं रुपए पर। विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया 10 पैसे कमजोर हुआ। $1 की कीमत 83 रुपए 80 पैसे दर्ज की गई। डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 100.22 पर कारोबार कर रहा था। चंद्रशेखर जी, रुपया आज तकरीबन 10 पैसे की कमजोरी दिखाई है रुपए ने, इसके पीछे क्या प्रमुख कारण आप देख पा रहे हैं? रुपए के देखिए, रुपए में तो बहुत मल्टीपल कारण होते हैं। जैसा कि हमारा जो सबसे मेन कारण होता है, एक तो डॉलर कैसे मूव कर रहा है, डॉलक्स कैसे ऊपर गया या नीचे गया या उस है। दूसरी बात, जो हमारा जो मेन चीज जो है जो इन्फ्लुएंस करती है डॉलर के प्राइस को या रुपये डॉलर के प्राइस को, वो होती है कि हमारी जो तेल की कंपनियां हैं उनको किस तरीके से वो परचेजेस और उनका वो हो। और दूसरा है कि रेमिटेंसेस हैं, तो रेमिटेंसेस तो बढ़ी हैं, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। और आज एक डेटा आया है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1% से बढ़कर के 0.1% हुआ है। तो ऐसा कोई खास उसमें मूवमेंट नहीं है। Let's take the next call, which is coming in from Kolkata. That's from our listener Atanu Saha. Mr. Saha, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Good evening, sir. My question is, who are self-helper? Who are self-helper, and how self-helping group boosting our economy? And my second one, how do we understood the particular stock is undervalued? Thank you very much, sir. Self-help groups के बारे में पूछ रहे हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो लोग बनाते हैं, और जैसे बहुत से आपके जैसे कलकत्ता में ये जिस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस, ये हो एक दूसरे को मदद करती हैं, बिकॉज दे पुल इन सम मनी एंड दे प्रोवाइड services, like marketing or procurement or इस तरीके. There are several organizations in the self-help group. And secondly, you have asked, कि how to find out whether a stock is undervalued or overvalued. This is a very complex system, and there are parameters, but sometimes those parameters also don't work. So you have to look at the stocks in the peer group and see how they are performing, and then only you can look at some parameters, especially the PE ratio, to find out whether a stock is overvalued or undervalued. But this is a very difficult call, and all the experts are engaged in this task, and they have not been able to find out any proper way of valuing a stock. Let's move on with more news, and let's see how the Asian and European markets performed today. 3 out of 5 major Asian indices ended higher today. China's Shanghai Composite Index soared nearly 7.5%. Hong Kong's Hang Seng Index surged 2.3%, and Singapore's Straits Times Index increased 0.3%. Meanwhile, Japan's Nikkei plunged more than 5%, and South Korea's Kospi declined more than 2%. Major European indices were trading in negative territory. France's CAC 40 was trading more than 1.5% down. London's FTSE lost 0.7%, and Germany's DAX fell 0.6% when reports last came in. जी, और नजर डालते हैं अपनी अगली खबर की ओर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि वह मेक इन इंडिया पहल को और मजबूत करने के लिए व्यापक कार्य सुधार योजना BRAP 2024 लागू करेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये इस योजना से देश भर में एक निर्बाध व्यापार नियामक ढांचा स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे कारोबार सुगम होगा। मंत्रालय का कहना है कि इस योजना से कारोबारी प्रक्रियाओं को और सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।
नियमों के अनुपालन का बोझ कम होगा और डिजिटल समाधान के जरिए भारत को एक पसंदीदा वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। और हमारे साथ अगले कॉलर कोलकाता से जुड़ चुके हैं कौशिक सेन गुप्ता। कौशिक जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। हेलो जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना प्लीज। नमस्कार जी। पहले मार्केट मंत्र की पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये अच्छा प्रोग्राम आप लोग करते हैं। मेरा सवाल है, एक्चुअली ये जो IEPF अकाउंट है, ये IEPF अकाउंट कैसे काम करता है? क्योंकि हमारा जो कुछ शेयर्स है जो कि पेपर शेयर्स है पुराने पापा के मम्मी के टाइम के, तो उसको अगर ट्रांसफर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? बिकॉज इसका कोई ऑफिस नहीं है, माने एक्सेप्ट दिल्ली, ऑल इंडिया बेसिस में और कहीं ऑफिस मुझे पता नहीं है कि नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। ये IEPF अकाउंट के बारे में जानना चाह रहे हैं। बेसिकली इनके पेरेंट्स के कुछ पेपर शेयर्स हैं जिनको ट्रांसफर करने का तरीका जानना चाह रहे हैं। पेपर शेयर को ट्रांसफर करने के लिए जो आपका जो राइट वो है, वो आपको जैसे कहीं किसी डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, फिर उसमें आप वहां से आप जो है आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि आपको वो जो पेपर शेयर है वो किसको देना पड़ेगा और कैसे किस तरीके से वो जो उसको जो पेपर हैं शेयर्स हैं वो डीमेट में कन्वर्ट होंगे। तो ये आपको अब चूंकि अब पता नहीं, आपने बोला कि पापा के तो कितने पुराने शेयर्स हैं, तो उसका जो उस समय उसका जो वो होल्ड करता था शेयर्स वो किसके पास थे। तो जो सही तरीका ये है वो होगा कि आप कहीं पे डीमेट अकाउंट खोलिए और जिनसे डीमेट अकाउंट खोलिए उनसे आप जाकर सलाह लीजिए कि ये पेपर शेयर हमें कहाँ डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और वहां से उसको जो है वो जो पेपर अकाउंट वो है जो स्टॉक्स हैं उनको डीमेट में किस तरीके से कन्वर्ट होगा। Let's move on to the next story. India's 8 core sectors output growth declined to 1.8% in August on annual basis, as against 13.4% in the same month last year, according to the data released by the Ministry of Commerce today. The growth rate was 6.1% in July. During April to August in current fiscal, the output of core sectors rose 4.6% against 8% in the same period in last fiscal. Steel production increased by 4.5% and fertilizer production increased by 3.2% in August. Meanwhile, coal and electricity output recorded their first contraction in at least 13 months, declining 8.1% and 5% respectively in August. Natural gas production shrank 3.6% and crude oil production dipped by 3.4%. Cement production fell 3% while refinery products declined by 1%. The Index of 8 Core Industries, or ICI, measures the combined and individual performance of production of 8 core industries, which are cement, coal, crude oil, electricity, fertilizers, natural gas, refinery products, and steel. The 8 core industries comprise 40.27% of the weight of items included in the Index of Industrial Production, IIP. A very quick question, Chandrasekhar ji. We see that although the core sector output has declined, but steel and fertilizer has done well. What is your assessment of that? You know, if you look at the core sector output has declined almost after 3.5 years. This is for in 3.5 years, this is for the first time that core sector output is in the negative. And the main reason for decline in the core sector output is because there are a lot of rains during the month of August. So that has led to the decline in the coal sector output. Let's move on to commodities. Oil prices fell today and were on track to fall for the third month in a row as a strong supply outlook outweighed fears of escalating conflict in the Middle East. In the global crude market, Brent crude was trading 0.4% down at $71.69 per barrel, and the US West Texas Intermediate was trading flat at $68.18 per barrel when reports last came in. और श्रोताओं, अब आज की चर्चा को इसी के साथ विराम देते हैं। चंद्रशेखर जी, मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अंग्रेजी में हेडलाइंस एक बार फिर। Domestic benchmark indices end in negative territory amid mixed global cues. Sensex plunges over 1,000 points while Nifty settles at 25,810. Government to bring in the Business Reform Action Plan BRAP 2024 to further strengthen Make in India initiative. And global crude oil prices fall today as strong supply outlook outweighs fear of escalating conflict in the Middle East. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.